Very good morning, dear students. How are you all? Welcome to e-learning classes of accountancy. Today is the lecture number 51 turn, and in this lecture I am going to start new chapter, that is chapter number 17, provision and reserve. After depreciation, I think you all are knowing what is provision. Provision is to be made in respect of a liability which is certain to be incurred, but its accurate amount is not known. प्रोविजन क्या है? प्रोविजन उस रेस्पेक्ट वो लाइबिलिटी है जिसकी आपके सर्टेन है कि होनी ही होनी, लेकिन उसकी एक्यूरेट अमाउंट हमें नहीं पता होती है. इट इज़ अ चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन एस्टिमेट बेसिस. वी एस्टिमेट कि इतने अमाउंट का चार्ज हमें देना है. इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट इफ द अमाउंट ऑफ नोन लाइबिलिटी कैन बी डिटरमाइंड विद रीजनेबल एक्यूरेसी इट कैन नॉट बी अ प्रोविजन. और अगर आपको लाइबिलिटी पता है, नोन लाइबिलिटी है, लेकिन उसके अगर एक्यूरेट अमाउंट आप मेजर कर ले रहे हैं तो प्रोविजन नहीं है. प्रोविजन क्योंकि फ्यूचर में क्रिएट होता है, उसके हमें जो है वो नहीं पता होती है कि कितनी अमाउंट हमें पे करनी है. एनी अमाउंट रिटन ऑफ और रिटेन बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन or diminution in the value of asset or for providing any known liability of which the amount cannot be determined with substantial accuracy, it is known as provision, according to Institute of Chartered Accountant of India. That is, according to Institute of Chartered Accountant of India, any amount of written off or retained by way of providing depreciation or diminishing in the value of asset or for providing any known liability of which the amount cannot be determined with substantial accuracy, it is called provision. The liabilities which can be measured only by using a substantial degree of estimation is known as provision. See beta importance of provision. There are some examples of provision also. For example, provision for depreciation of asset, provision for taxation, provision for bad and doubtful debt, provision for discount on debtors, provision for repair and renewal of asset. These are the examples of provision. Depreciation of asset is provision, provision for taxation, provision for bad and doubtful debt, provision for discount on debtors, provision for repair and renewal of asset. That is all provision. Now see importance of provision, beta. The three main importance of provision are to establish the authentic net profit of a firm. We create provision so that we can come to know the accurate profit of the firm, that is net profit. To determine the true financial status of a company, provision is made to determine the true financial status. It means what is the amount of asset, accurate amount of asset and liability is determined by creating provision. Then to predict future losses in the future. To predict the future losses, we are creating the provision. The next is reserve. Provision and reserve दो टॉपिक हैं आपके. Provision is an estimate of known liability in which amount is not known. Provision वो estimate है जो हम known liability के लिए करते हैं. For example, for depreciation, for the decline in the value of asset, but उसकी हमें एक accurate amount पता नहीं होती है. Reserve means amount set aside out of profit and other services to meet future uncertainties. Reserve वो amount है जो हम रख देते हैं अलग from our net profit of the firm so that we can meet any uncertainties of the business. It means reserve क्या होता है? Reserve unknown liability के लिए create किया जाता है. Reserve में we keep some amount of our net profit as reserve so that we can meet any future uncertainties. Provision is made for known liability. Reserve is made for unknown liability. Provision is made in provision. The accurate amount is not known, and in reserve we are not knowing which type of uncertainties can be happen in future. For example, general reserve, dividend equalization reserve, capital reserve, investment fluctuation fund, workman compensation fund, reserve for redemption of debenture, these are reserve. ठीक है, तो वैसे भी क्या है तुम्हारा बेटा, तो these are the reserve, that portion of earning, receipt or other surplus of an enterprise appropriated by the management for general or specific purpose other than a provision for depreciation or diminution in the value of asset or for a known liability is known as reserve. Reserve वो earning का portion है, वो receipt है, वो surplus है जो एक बार मैनेजमेंट डिसाइड कर लेता है कि हमें इसको जनरल और स्पेसिफिक पर्पस के लिए रख देना है. ये प्रोविजन नहीं है, लेकिन ये अननोन लाइबिलिटी को मीट करने के लिए होता है. प्रोविजन में हमें पता है कि डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट होनी है, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, लेकिन हमें रिजर्व में नहीं पता होता है कि व्हाट टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी कैन बी हेल्ड इन द बिजनेस. Now see difference between provision and reserve. Meaning provision is created
to meet known liability. Reserve is created to strengthen the financial position of business enterprise. Charge or appropriation, provision are charge against profit. Reserve is an appropriation of प्रॉफिट. प्रोविजन क्या है तुम्हारा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. प्रोविजन को हमें देना ही देना है चाहे हमारे बिजनेस को लॉस हो रहा हो. लेकिन रिजर्व एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है. मीन्स इफ देयर इज एन प्रॉफिट इन द बिजनेस तभी हम रिजर्व क्रिएट करते हैं. लॉसेस पे रिजर्व क्रिएट नहीं होते हैं. ऑब्जेक्ट इज टू प्रोवाइड फॉर द नॉन लाइबिलिटी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एक्यूरेटली. अब इसका रिजर्व प्रोविजन क्या होता है? नॉन लाइबिलिटी के लिए क्रिएट होता है, बस इसकी अमाउंट हमें नहीं पता होती है. एंड रिजर्व इट इज़ क्रिएटेड टू स्ट्रेटन द फाइनेंशियल पोजिशन एंड टू मीट अनफोर्सिन लाइबिलिटी. रिजर्व जो होता है अनफोर्सिन लाइबिलिटी को मीट करने के लिए क्रिएट होता है. देन इफेक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज़ डेबिटेड टू प्रॉफिट, हैंस प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड. रिजर्व प्रोविजन को हम प्रॉफिट से डेबिट करते हैं, इसलिए प्रॉफिट हमारा रिड्यूस हो जाता है. रिजर्व रिड्यूसेस डिविजिबल प्रॉफिट. रिजर्व जो नेट प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है या कंपनीज में दिया जाता है टू द ओनर्स, उसमें से क्रिएट होता है. तो ये आपकी जो प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट को रिड्यूस करता है, जबकि आपका जो प्रोविजन है ये हमारे नेट प्रॉफिट को रिड्यूस करता है. क्रिएशन प्रोविजन आर टू बी क्रिएटेड इवन इफ देयर आर इनसफिशिएंट प्रॉफिट. प्रोविजन क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. इट मीन्स अगर बिजनेस में इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तब भी हमें प्रोविजन देना ही देना है. बट रिजर्व तभी क्रिएट होता है व्हेन देयर इज एडिक्वेट प्रॉफिट इन द बिजनेस. प्रोविजन आर क्रिएटेड बाय डेबिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रोविजन क्रिएट होता है तब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं. इट इज़ क्रिएटेड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस. जबकि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करके भी प्रोविजन क्रिएट करते हैं, लेकिन जो रिजर्व होता है वो प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस से ही क्रिएट होता है. ठीक है. इट इज़ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. अगर रिजर्व प्रोविजन, इफ देयर इज प्रॉफिट देन ऑल्सो प्रोविजन इज क्रिएटेड. इफ देयर इज लॉस देन ऑल्सो प्रोविजन इज क्रिएटेड. लेकिन रिजर्व में क्या? रिजर्व इज ओनली क्रिएटेड व्हेन देयर इज एप्रोप्रिएट प्रॉफिट इन द बिजनेस. देन सेवंथ इज इन्वेस्टमेंट. इट कैन नॉट बी इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस. प्रोविजन को हम आउटसाइड द बिजनेस इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं. इट इज़ देयर इन द बिजनेस ओनली टू मीट द नॉन लाइबिलिटी. जबकि रिजर्व कैन बी इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस. रिजर्व अननोन लाइबिलिटी के लिए होता है, अनफोर्सिन सिचुएशन के लिए होता है. इफ देयर इज नो अनफोर्सिन सिचुएशन इन द बिजनेस तो हम इस रिजर्व को इन्वेस्ट कर सकते हैं इन द आउटसाइड मार्केट. नेसेसिटी क्रिएशन ऑफ प्रोविजन इज नेसेसरी एज पर लॉ. और प्रोविजन क्रिएट करना नेसेसरी है. इट्स क्रिएशन इज़ नॉट नेसेसरी. लेकिन रिजर्व को क्रिएट करना नेसेसरी नहीं है. इट इज़ क्रिएटेड एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस. मतलब जब आपको ज़रूरत है तो रिजर्व क्रिएट करिए, नहीं है तो आप रिजर्व को क्रिएट मत करिए. Now see the types of reserve. Broadly, there are two types of reserve: revenue reserve and capital reserve. Reserve are of two types. One is revenue reserve, another one is capital reserve. Revenue reserve and capital reserve. Revenue reserve के three types के हैं: general reserve, specific reserve, and secret reserve. Now see the details of this. There are two types of reserve. Number one, capital reserve. Capital reserve is not readily available for distribution as dividend among the shareholders of the company, and it creates only out of capital profit of the company. It is like premium on issue of shares or debentures and profit prior to incorporation. Capital reserve डे टू डे बिजनेस से क्रिएट नहीं होता है. कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड बाय द कैपिटल ऑफ द कंपनी. तो वो प्रीमियम वगैरह देने के लिए, इशू ऑफ शेयर्स में प्रीमियम देना है, डिबेंचर्स, प्रॉफिट इनकॉर्पोरेशन के लिए हम उसको यूज़ करते हैं. ये डेली की लाइफ उसको डेली के प्रॉफिट के लिए यूज़ नहीं होता है. नंबर टू इज रेवेन्यू रिजर्व. रेवेन्यू रिजर्व आर रेडिली अवेलेबल टू फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एज डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस आर जनरल रिजर्व. रेवेन्यू रिजर्व डे टू डे प्रॉफिट से क्रिएट होता है. रेवेन्यू रिजर्व 1 ईयर की प्रॉफिटेबिलिटी से क्रिएट होता है. और रेवेन्यू रिजर्व रेडिली अवेलेबल होता है सारी लाइबिलिटीज़ को मीट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल आपका जो है जनरल रिजर्व, स्टाफ वेलफेयर फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सब रेवेन्यू रिजर्व है जो ईयरली प्रॉफिट से क्रिएट करते हैं. दैट इज रेवेन्यू रिजर्व. एंड व्हेन वी आर क्रिएटिंग एनी रिजर्व आउट ऑफ कैपिटल, so it is called capital reserve. Capital reserve is not available in the business. Revenue reserve is readily available to meet all the liabilities of the business. Now see beta, the revenue reserve is further divided into two categories: general reserve and specific reserve. Revenue reserve दो categories में divided है: general reserve and specific reserve. General reserve it is saving out of the profit share. General reserve हमारी saving है जो हम profit में से निकाल कर रख देते हैं for the general purpose. The only purpose of this reserve is to strengthen the financial position of the company or can be used for many reasons. General reserve को हम किसी भी reason के लिए यूज़ कर सकते हैं. कोई भी unforeseen situation business में आ रही है तो we can take money from general reserve and we can utilize to meet that unforeseen situation.
Number two is a special reserve. This reserve is to secured for the particular purpose and the money cannot be used for any other reason. Special reserve that is a specific reserve. इसको हम सिर्फ स्पेशल पर्पस के लिए रखते हैं और इसकी मनी सिर्फ उसी स्पेशल पर्पस को मीट करने के लिए यूज़ में होती है. इसको हम किसी और लाइबिलिटी को मीट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं. A general reserve can be used to meet any of the unforeseen situation of the business. Some example of specific reserve are as dividend equalization reserve, debenture redemption reserve, investment fluctuation reserve, workman compensation fund. ठीक है, ये सब क्या है आपका स्पेसिफिक रिजर्व और स्पेशल रिजर्व का पार्ट है. नंबर वन, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व. डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व इज क्रिएटेड टू इक्वलाइज द रेट ऑफ डिविडेंड ओवर द ईयर्स. रेट ऑफ डिविडेंड को इक्वलाइज करने के लिए या स्टेबल करने के लिए हम डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व को यूज़ करते हैं. यूजुअली इन द ईयर ऑफ लार्ज एंड एडिक्वेट प्रॉफिट, a portion of profit is transferred in this account, and in the year of inadequate profit the amount kept in this account can be used to paying the dividend to the shareholders. जिस ईयर में कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हो रखा है, कंपनी कीप अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू दिस डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व. और जब कंपनी को इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी इसी प्रॉफिट को, जो आप प्रॉफिट का पार्ट आपने रखा है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, उससे आप डिविडेंड को पे कर सकते हैं. इट मीन्स डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व इज क्रिएटेड ओनली फॉर द स्टेबल डिविडेंड इन द कंपनी. ठीक है, दिस रिजर्व इज क्रिएटेड बाय वे ऑफ द फॉलोइंग जनरल एंट्री. और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व को क्रिएट करने के लिए फॉलोइंग जनरल एंट्री इज पास, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व अकाउंट. ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट वन बेटा. नंबर सेकंड इज डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. डिबेंचर रिडम्पशन मतलब रिपेमेंट. डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट द एंड ऑफ सम स्पेसिफिक पीरियड. किसी भी स्पेसिफिक डिबेंचर्स क्या होता है, एक तरीके का लोन है विच वी हैव टेकन फ्रॉम आउटसाइड. उसका एक टाइम पीरियड होता है. आफ्टर दैट टाइम पीरियड वी हैव टू पे दैट लोन. दैट पेमेंट इज नोन एज रिडम्पशन. तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इसलिए क्रिएट होता है ताकि स्पेसिफिक पीरियड के बाद हम पेमेंट को दे सकें. एंड दिस कनेक्शन एवरी ईयर अ स्पेसिफिक सम आउट ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज सेट असाइड इन दिस रिजर्व. इस रिजर्व में एवरी ईयर हम अपने प्रॉफिट का पार्ट रखते जाते हैं ताकि आपका एक तरीके से सिक्योरिटीज़ होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट पे सिक्योरिटीज़ क्रिएट होती हैं. और फिर जब आपका डिबेंचर का रिडम्पशन होता है यानी रिपेमेंट होता है, उस टाइम पर हम यहाँ से अमाउंट निकाल करके पे कर देते हैं. दिस रिजर्व इज क्रिएटेड बाय वे ऑफ द फॉलोइंग जनरल एंट्रीज. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट. Now see the next one beta, that is investment fluctuation reserve. Third one, sometimes business enterprise invests their surplus funds outside their business in shares, debentures or other securities. Also the price of such investment keep on changing depending on certain market condition and or government policies etc. To bear any loss in case of decrease in value of such investment, business enterprise set aside a part of profit in investment fluctuation reserve so that any loss arising on account of decrease in value of such investment can be met from this reserve. तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों क्रिएट होता है बेटा, क्योंकि कंपनी क्या करती है, अपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स करती है. सो बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि जब बिजनेस इन्वेस्टमेंट करती है बाहर आउटसाइड द बिजनेस, तो कभी शेयर्स में, कभी डिबेंचर्स में या अदर सिक्योरिटीज़ में, तो प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट चेंज होता रहता है. कभी प्राइस इंक्रीज़ भी होती है, कभी प्राइस डिक्रीज़ भी होती है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑल्सो. तो अगर किसी तरीके का कोई लॉस होता है, फॉर एग्जाम्पल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो उसको मीट करने के लिए वी कीप दिस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सो दैट एनी लॉस अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ सच इन्वेस्टमेंट कैन बी मेट फ्रॉम दिस reserve. This reserve is created by the way of the following journal entry: profit and loss appropriation account debit to investment fluctuation reserve account. Number 4 is workman compensation fund. Workman compensation fund is created to meet the claim of the workers in case that they get injured from the accident. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्यों क्रिएट होता है, ताकि हम जो है वर्कर्स के क्लेम्स को बियर कर सकें. अगर वो उनको कोई इंजरी हो जाती है ड्यूरिंग वर्किंग, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस एक्सीडेंट को बियर करने के लिए हम वर्कमैन कंपनसेशन फंड को क्रिएट करते हैं. दिस कैन बी क्रिएटेड बाय वे ऑफ द फॉलोइंग जनरल एंट्री: प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट. Now C is secret reserve. What is secret reserve beta? Secret reserve is a reserve that do not appear in the balance sheet. It can be created in the years of higher profit and can be merged with the profit during the lean period. Secret reserve वो रिजर्व है ताकि आप कंपनी की गुडविल को मेंटेन कर सकें. सीक्रेट रिजर्व बैलेंस शीट में शो नहीं होता है. जब आपके हायर प्रॉफिट होता है तो हम रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सीक्रेट रिजर्व. और जिस ईयर में आपका लीन प्रॉफिट मीन्स लेस प्रॉफिट हो रहा है, तो हम इस रिजर्व से अपनी कंपनी की गुडविल को मेंटेन कर लेते हैं. Secret reserve can be created as undervaluing stock by making excessive provision than the required by charging capital expenditure to the revenue. से हम secret reserve को create करते हैं.
Secret reserve is secret in the sense that it is not known to the outsiders. Secret reserve को बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं, ये आउटसाइडर्स को पता नहीं होता है. सीक्रेट रिजर्व इसीलिए होता है ताकि हमारी कंपनी में कभी भी इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो रहा है या लॉसेज आ रहे हैं तो उसको बियर करने के लिए वी कैन यूज सीक्रेट रिजर्व, वी कैन मेंटेन द गुडविल और रेपुटेशन ऑफ द फर्म इन द मार्केट इन अ प्रॉपर मैनर. Capital reserve. Capital reserve number 2 is capital reserve. Capital reserve are the reserves created out of capital profit. ये बताया था मैंने भी आपको. Capital reserve capital profit से create होता है. For example, profit on sale of fixed assets, profit on revaluation of fixed assets, securities premium received on issue of shares or debentures, profit on redemption of debenture, profit prior to incorporation, profit on reissue of forfeited shares. इससे हम capital reserve को create करते हैं. Capital reserve मैंने इसलिए यहाँ पे दोबारा explain करा है so that you can come to know about with the example that what is capital reserve. It means capital reserve is created out of capital profit. कैपिटल रिजर्व कैन बी यूटिलाइज फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेज. कैपिटल रिजर्व को हम कैपिटल लॉसेज को राइट ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं. कैपिटल रिजर्व आर नॉट अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट. कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ नहीं होता. इट इज़ ओनली यूज व्हेन देयर इज इनएडिक्वेट प्रॉफिट इन द बिजनेस और हम उसके जो है अपने लॉसेज को बेयर करने के लिए कैपिटल रिजर्व को यूज़ करते हैं. हाउएवर सम कैपिटल रिजर्व सच एज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग एज डिविडेंड इन द इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हम कैपिटल रिजर्व को क्रिएट कर सकते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड एज वेल. द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मस्ट बी रियलाइज्ड बाय द कंपनी इन कैश. अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को हम कैश में रिलीज करें देन दिस कैपिटल रिजर्व कैन बी यूज्ड इन द बिजनेस फॉर मीटिंग एनी अनफोर्सिन सिचुएशन. सच प्रॉफिट्स एग्जिस्ट आफ्टर रिवोल्यूशन ऑफ ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ड्यूरिंग द बिजनेस. ठीक है बेटा. नाउ सी रेवेन्यू रिजर्व तो आपने ये पढ़ ही लिया था. जनरल रिजर्व इट इज शेविंग. रेवेन्यू रिजर्व भी आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व. मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन कर दिया था. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड ऑल दिस टॉपिक्स और इसके नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा. चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड. फ्रॉम द माई नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर एंड कंप्लीट ऑल द नोट्स. दिस वन इज योर थ्योरी चैप्टर. कंप्लीट ऑल द नोट्स इन योर कॉपी. थैंक यू बेटा. हैव अ नाइस डे.